गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्कोलियोडॉन के सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्कोलियोडॉन के सेंस ऑर्गन्स में आते हैं आइज़, नोज़, ईयर एंड मैनी अदर्स। आप इसके अंदर देखेंगे सेंस ऑर्गन में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है वो है आइज़। और आइज़ के डायग्राम में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑर्बिट ऑफ स्कोलियोडॉन है वो किस तरह का होगा और उसमें आइज़ विद द ब्रेन, मसल्स एंड नर्व्स के साथ रिलेशनशिप किस तरह से होती है। द आई बॉल इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। आई बॉल 3 लेयर्स की बनी होती है, द स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। द स्क्लेरा इज कार्टिलेजिनस। स्क्लेरा कार्टिलेजिनस होता है। द प्यूपिल इज ए वर्टिकल स्लिट एंड इट कैन बी डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड। प्यूपिल जो होगी वो वर्टिकल स्लिट की फॉर्म में होती है जो डायलेट भी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है। द रेटिनल लेयर कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स और कोन्स रेटिनल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ग्वानिन प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कोरॉइड लेयर विच इज कॉल्ड टैप्टम ल्यूसिडम। इट एक्ट एज रिफ्लेक्टर। ग्वानिन प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं कोरॉइड लेयर के अंदर और जिसे टैप्टम ल्यूसिडम कहा जाता है, जो रिफ्लेक्टर की तरह कार्य करता है। द क्रिस्टलाइन लेंस इज स्फेरिकल। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो स्फेरिकल होता है। द लेंस इज केप्ट इन पोजिशन बाई सस्पेंसरी लिगामेंट विच एक्सटेंड फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लेंस टू द ciliary processes. The ciliary processes are longitudinal folds of the choroid layer. The eyes is kept in its position in the orbit by 6 extrinsic eye muscles. इसमें 6 extrinsic eye muscles होती हैं जो कि eyes को उस position पे रखती हैं. Beside the eye muscles there are an optic nerve and a cartilaginous optic pedicle. These eye muscles are attached with the eyeball in 2 groups. The first group includes superior rectus, inferior rectus, anterior rectus and posterior rectus. The second group includes superior oblique and inferior oblique. The superior rectus runs outwards and upwards and is inserted on the dorsal side of the eyeball. The inferior rectus muscle extends outwards and downwards to be inserted on the ventral side of the eyeball. The anterior rectus runs outwards and downwards and is attached to the ventral surface of the eyeball. The posterior rectus muscle run backwards and is attached with the posterior surface of the eyeball. The superior oblique muscle is attached on the dorsal surface of the orbit just in front of the insertion region of the superior rectus muscle. The inferior oblique muscle is attached to the ventral surface of the eyeball just in front of the inferior rectus muscles. The eyes of Scoliodon are quite prominent होती हैं and are proportionately larger in size और size में काफ़ी बड़ी होती हैं. The eyes are laterally placed and each eye has its own range of vision. monocular vision इसके अंदर होता है. आइज स्कोलियोडॉन इज पॉसिबली कलर ब्लाइंड. ये माना जाता है स्कोलियोडॉन कैसे होती है, कलर ब्लाइंड होती है. ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, जो सेकंड सेंस ऑर्गन्स हैं वो हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन. देयर आर 2 ब्लाइंड sac like olfactory organs situated in front of the mouth. माउथ के इन फ्रंट ऑफ द माउथ 2 ब्लाइंड sac like olfactory organs मौजूद होते हैं. Each olfactory sac is placed in a cartilaginous capsule and does not communicate with the buccal cavity. ये cartilaginous capsule के अंदर मौजूद होते हैं. The mucous membrane of olfactory sac is thrown into 2 series of folds called Schneiderian folds, which are placed by the median raphe. Physiologically, each nasal opening is divided by 3 muscular nasal valves into a median excurrent siphon and a lateral incurrent siphon. अगला जो सेंस ऑर्गन है स्कोलियोडॉन का वो आता है इंटरनल ईयर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है. द इंटरनल ईयर और उसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी कहा जाता है. ये एक्टोडर्मल सैक में क्लोज्ड होता है. It consists of 3 semicircular canal and a central body differentiated into an anterior utriculus and a ventral sacculus. 2 में differentiate होता है, anterior
यूट्रिकुलस एंड ए वेंट्रल सैकुलस में। द थ्री सेमी-सर्कुलर कैनाल आर अरेंज्ड इन थ्री प्लेन्स ऑफ द बॉडी एंड ओपन इनटू द सेंट्रल बॉडी बाय बोथ एंड्स। और तीनों की तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं वो अलग अलग प्लेन में होती हैं और सेंट्रल बॉडी में दोनों एंड से खुलती हैं। बट वन एंड ऑफ ईच कैनाल डायलेट्स टू फॉर्म एम्पुला, लेकिन खुलने से पहले हर एक कैनाल में एम्पुला मौजूद होता है। द यूट्रिकुलस गिव्स ऑफ एन इन्वेजिनेशन कॉल्ड recessus utriculi beneath the ampulla of the anterior vertical and horizontal semicircular canal. The sacculus gives a posterior outgrowth called the lagina. The membranous labyrinth is placed in a cartilaginous auditory capsule. ये एक ऑडिटरी cartilaginous auditory capsules में मौजूद होता है. The inner cavity is filled with a fluid called the endolymph, into which many calcareous bodies, जिनको otoliths कहा जाता है, are present. The space between the membranous labyrinth and auditory capsule is filled with the perilymph. ये किसके द्वारा फिल्ड होता है? पेरीलिम्फ के द्वारा फिल्ड होता है. A long tube called the endolymph, lymphatic duct, communicate the cavity of sacculus to the exterior through a small opening. The membranous labyrinth of Scolioidon perform three functions. membranous जो labyrinth है या जिसको इंटरनल ईयर कहा जाता है, जैसे कि पहले बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है. ये हेल्प इन ओरिएंटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, ओरिएंटेशन में हेल्प करना. एक्सेलरेट इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग स्विमिंग, और जो डायरेक्शन है उसको एक्सेलरेट करना होता है. एंड हेल्प इन हियरिंग के अलावा ये दो और इम्पॉर्टेंट काम इसके होते हैं. द यूट्रिकुलस टुगेदर विद द सेमी सर्कुलर कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिएंटेशन एंड एक्सेलरेशन. यूट्रिकुलस ओरिएंटेशन और एक्सेलरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वाइल द सैकुलस इज मीन्ड फॉर हियरिंग, जबकि सैकुलस जो है वो हियरिंग में हेल्प करता है. द इंटरनल ईयर आर द स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन इन स्कोलियोडॉन. नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है वो है सेंस ऑर्गन्स में, वो न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स हैं. दीज ऑर्गन्स कंप्राइजेस ऑफ द लेटरल लाइन रिसेप्टर्स एंड द पिट ऑर्गन्स. द लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स लाई इनसाइड द लेटरल लाइन कैनाल. These sense organs are the epidermal derivatives and are called neuromasts, which remain embedded in the wall of the lateral line canal. This canal communicates to the exterior by minute pores. The pit organs occurs on the lateral and dorsal sides of the head. They are actually ectodermal pits connected by group of sense cells. The neuromast organ help to orient the body in relation to current and waves and are designated as rheoreceptors. चूँकि ये वेव्स के साथ या करंट के साथ अपनी बॉडी को हेल्प करते हैं ओरिएंट करने में, इसलिए इनको रियोरिसेप्टर्स कहा जाता है. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन से आते हैं, वो है एम्पुला ऑफ लॉरेंचिनी. जैसे इनिशियली डायग्राम में देखा गया था. इन्यूमरेबल पोर्स ऑन द डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स ऑफ द हेड leads into a long tube which terminates into radially arranged ampullary sacs. जो डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स पे जो हेड है वहाँ पे छोटे छोटे आपको पोर्स होंगे. वो पोर्स अल्टीमेटली किस में टर्मिनेट होते हैं? रेडियली अरेंज लॉन्ग ट्यूब्स में टर्मिनेट होते हैं, जो एम्पुलरी सैक्स में खुलती हैं. द एम्पुला लाई इन क्लस्टर्स एंड ईच ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 chambers arranged radially around a central core called centrum. Two types of cell are encountered in the ampulla, glandular cell and sensory cell. The ampulla gets the names according to their location. उनका जो नाम है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें दो तरह की सेल होंगी, ग्लैंडुलर सेल और सेंसरी सेल. These sense organs are the thermoreceptors and are also the प्रेशर रिसेप्टर्स. ये थर्मो रिसेप्टर्स की तरह से काम करते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंचिनी, या फिर प्रेशर रिसेप्टर्स की तरह से काम करते हैं. तो ये थे आज हमने डिस्कस किया, वो हैं स्कोलियोडोन के डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, जिसमें आते हैं आइज, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, न्यूरोमास सेल, एम्पुला ऑफ लॉरेंचिनी, और साथ साथ ही
इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक यू वेरी मच।